on to the next one, that is exothermic. Okay, so there are two types of processes, exothermic and endothermic. I gave a little glance in my first lecture, लेकिन today we will be studying in detail. So exothermic and endothermic, there are two types of reaction, and this type of question can be asked in 3 marks or 2 marks in your board exam. Ki what are the differences between exothermic and endothermic reactions, and give examples of each. So this type of questions can be asked. So please focus. Exothermic, I told the trick that exo means here O is coming, so that is release or loss of heat energy. That is release or loss of heat energy in exothermic. Now first point, एनर्जी रिलीज और लॉस ऑफ हीट एनर्जी, मतलब कि हीट एनर्जी इसमें रिलीज होती है. नाउ सेकेंड पॉइंट, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इंक्रीजेस. सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज होता है. क्यों? क्योंकि हम लोग ने हीट रिलीज़ की है, मतलब कि हमने सराउंडिंग को दे दी, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर ऑब्वियसली बात है इंक्रीज होगा. नाउ देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. नाउ व्हाट डू मीन बाय दिस, कि अगर हमारे पास कोई चीज़ ज़्यादा है तो ही हम दूसरों को देते हैं ना. द होल पॉइंट इज़ कि हमारे पास जो चीज़ ज़्यादा है वो हम लोगों को डोनेट करते हैं या फिर लोगों को देते हैं. सो हियर ऑल्सो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. क्यों? क्योंकि पहले उसके पास एनर्जी थी. पहले मतलब कि रिएक्टेंट्स विच अंडरगो केमिकल चेंज, मतलब कि जो केमिकल चेंज से अंडरगो नहीं हुए थे वो उससे पहले की बात है. रिएक्टेंट्स के पास एनर्जी थी, क्योंकि रिएक्टेंट्स के पास एनर्जी ज़्यादा थी, उन्होंने रिलीज कर दी थोड़ी एनर्जी, एंड देन दे आर कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट. सो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स आर ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स. दिस इज द होल पॉइंट. Now examples of exothermic, मतलब कि exothermic reactions के examples कौन कौन से हैं. First one is respiration, that is the respiration. Okay, now second one is the decomposition of vegetable matter into compost, that is biogas, you will be studying later on. And then the third one is burning of natural gas. So these are the 3 examples. If you want, you can also add the reactions of this in your answers, make it more interesting. Okay, now quickly revising this slide again. Exothermic means release of heat energy. Temperature of surrounding increases because we have, मतलब हमने दी है तो उसके पास इंक्रीज होगा, हमारे पास थोड़ी सी कम होगी, नॉट दैट मच, लेकिन थोड़ी सी कम होगी. सराउंडिंग की इंक्रीज होगी. क्यों? क्योंकि हमने उसकी हेल्प की है. रिएक्टेंट के पास एनर्जी थी, उसने दे एनर्जी, उसने रिलीज कर दी, देन ऑब्वियसली बात है प्रोडक्ट के पास उसकी उतनी एनर्जी नहीं होगी. देन एग्जाम्पल आर RDB. Examples are, what are the examples of exothermic reaction? R, D, and that is B. Respiration, R for respiration, D for decomposition of vegetable matter into compost, and that is B, that is the burning of natural gas. That is RDB, the short form. Now moving on to the next one, quite similar to this one, लेकिन पढ़ना पड़ेगा. Endothermic. Now endothermic, that is exothermic, that is the loss, लेकिन in endothermic we have gain और absorb heat energy. हमने इसमें gain की है या फिर absorb की है heat energy को, so that temperature of surrounding decreases. obviously बात है हमने उससे temperature surrounding से heat ले ली, मतलब कि heat को absorb कर लिया, तो उसके पास कम हो जाएगी, हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी. so that is the whole point. and then energy of react, and here energy of reactants is less than energy of product. क्यों? क्योंकि हमने बाद में gain की है, during a reaction हमने gain की है, पहले से नहीं थी हमारे पास, पहले से नहीं थी. we absorb during a reaction, so that energy of product becomes higher than the energy of reactant. so that is the whole point. now coming to the examples, all decomposition reaction as they recur. okay, सारी की सारी जो भी decomposition reaction होती है हमने देखी अभी जो. okay, that I forgot to say one point, कि जो sunlight वाले था AgCl, मतलब कि जो क्लोराइड AgCl को हमने sunlight के साथ प्रेजेंस में था, that is an example of photolytic decomposition. क्यों? क्योंकि हमने sunlight के प्रेजेंस में उसे ब्रेक डाउन किया था, उसकी रिएक्शंस करवाई थी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सो दैट इज अ फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. कमिंग बैक, एग्जांपल ऑल मतलब सारे के सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जितने भी हमने अभी तक पढ़े वो सारे के सारे एंडोथर्मिक हैं. क्यों? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हमने एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी गेन की है या फिर एब्जॉर्ब की है. हाउ? दैट इज़ दी उनके फॉर्म्स अलग हो सकते हैं, लाइक दैट इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, लाइट मतलब कि फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, एंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ decomposition. so these are the whole thing you need to remember it. and also the photosynthesis is also an example of endothermic, because the reaction of photosynthesis also occurs in the presence of sunlight. so this is very important.
you need to learn. Okay, now quick recap. Endothermic gain or absorb heat energy, temperature of surrounding decreases, क्योंकि उससे हमने ले ली है, उसके पास जो था उसे हमने ले ली, तो टेम्परेचर की सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा. एंड देन हमने ले ली है तो ड्यूरिंग अ प्रोसेस वी एब्जॉर्ब द हीट सो दैट द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज देन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. सो दैट इज द थिंग. एंड एग्जाम्पल्स में इसमें सारे आ जाएंगे, सारे के सारे आपने अभी तक पढ़े. And also photosynthesis. Also photosynthesis is also a type of photolytic decomposition because it also occurs in the sunlight. Now moving on to the next. So this is also important. This page shows that this summarizes the exothermic and endothermic. That is the hotter than surrounding. क्यों exothermic उसने that is the release of energy, मतलब उसने release की तो उसके पास ज़्यादा है तभी तो release की. Here also it is having more heat, so it releases so that the energy of product becomes less than the energy of reactants. Here energy of reactants are higher, and here endothermic they are absorbing the heat energy during a chemical reaction. मतलब कि the energy of product are higher, मतलब कि पहले नहीं थी, बाद में during a reaction it is absorbed. So energy of products is higher than the energy of reactants in endothermic, and we are absorbing it from the surrounding. So temperature of surrounding decreases. क्यों? क्योंकि हमने ले लिया ना तो कम हो गया, इसमें हमने दे दिया तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया. So surrounding temperature becomes increases, and here surrounding temperature decreases. So that is the whole point. That is the whole difference between endothermic and exothermic reactions. Now moving on to the next one. Okay, so here I have asked something. Question number 1. A solution of substance X is used for whitewashing. You need to remember this because मैंने बहुत मेहनत की थी आप लोगों को वो याद करवाने में. So okay, sub question, name the substance X and write its formula. This is very important. Now second thing, write the reaction of substance X, name it above with water. Okay, this you need to answer me in my comment section right now by pausing this video. मैं आप लोग को आंसर्स बताऊंगी, लेकिन प्लीज़ पॉज करके आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर्स लिखो, दैट मुझे भी पता चले कि yes you are also getting the things what I am trying to say. So please pause the video and write the answers in my comment section. And what is the second question? Says why is the amount of gas selected in one of the test tube in the activity movement double. Now I am going to start. I hope कि आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा. Let's come to the answers. Okay, so for the first one, the answer is calcium hydroxide. Calcium hydroxide, that is formula CaOH twice, that is used in whitewashing walls. मैंने इक्वेशन नहीं लिखी है, आप लोग प्लीज़ लिख लेना कि राइट द इक्वेशंस ऑफ सब्सटेंस एक्स. वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना था, एंड दैट्स ऑल. एंड ना द सेकंड क्वेश्चन, वैसे तो मैंने बोल दिया है आप लोगों को, बस बाय इलेक्ट्रोलाइसिस मैंने बोला था आप लोगों को टेस्ट ट्यूब में अमाउंट डिफर करती है. क्यों? क्योंकि बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर वी गेट more molecules of, that is the 2 molecules of hydrogen and only 1 molecule of oxygen, so the amount of hydrogen produced is more. So this is the answer and this is the question you need to remember. Now moving on to the next topic actually. So we have completed combination, we have completed decomposition, and now coming on to the displacement reaction. और एक्टिविटी आप लोग को ख़त्म ही नहीं होती. एक्टिविटी 1.9, इसमें क्या है कि 3 नील्स, एक्चुअली दे हैव टेकन 3 नील्स, उसमें से 2 को टेस्ट ट्यूब में टाई करके कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखा थोड़ी देर के लिए, एंड द थर्ड नेल वाज लेफ्ट आउटसाइड. वो सिर्फ कंपेयर करने के लिए रखी है, उसको सिर्फ बाहर रखना है, उसको सिर्फ लास्ट में कंपेयर करना है और कुछ नहीं करना. सो आफ्टर सम टाइम टू ऑब्जर्व दैट दे हैव आस्क्ड, सो द आयरन नेल्स टर्न्स ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स. दिस इज़ द ऑब्जर्वेशन, यू नीड टू राइट इट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक. सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोग को क्या क्या दे सकूँ, क्या किससे आप लोग को ये सब सारी चीज़ें याद आ सकें. सो प्लीज़ नोट इट डाउन. आयरन नेल्स टर्न्स ब्राउनिश इन कलर एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स. क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है. कैसे? क्योंकि पहले आयरन प्लस कॉपर सल्फेट जो दोनों हमने मिक्स किया था, आफ्टर सम टाइम्स आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सो दैट आयरन सल्फेट बन जाता है एंड देन कॉपर इज रिलीज आउट. सो कॉपर सल्फेट टर्न्स टू आयरन सल्फेट. तो यहाँ पे कॉपर का मतलब कि कॉपर का डिस्प्लेसमेंट होता है बाय आयरन, कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दे, ओके मान लो ये एक सीट है, यहाँ पे कॉपर ऑलरेडी बैठा है, तो कोई अगर दूसरा इंसान आके उसको बोले कि यार प्लीज़ उठ जाओ मुझे बैठने दे, तो ऐसे ही तो नहीं उठेगा ना, उसने जगह बना ली, सो बना ली. जब कॉपर से ज़्यादा कोई अगर उससे
ज़्यादा कोई पावर वाला या फिर ज़्यादा रिएक्टिव इंसान आके उसे बोले कि प्लीज़ यार उठ जा, मुझे बैठने दे, उससे ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, तभी तो वो डिस्प्लेस हो कर पाएगा ना, तभी तो वो कॉपर को उठा सकेगा, वरना वो तो अपनी जगह पे मस्त ऐसे खुश है। तो आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सो दिस इज़ द एक्टिविटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आते ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि आयरन नील्स थी, ओके, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड दिस आर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर थोड़ा सा फेड्स होता है, मतलब कि ब्लू होता है लेकिन लाइट ब्लू टाइप हो जाता है, एंड द आयरन नील्स टर्न्स ब्राउनिश इन कलर, सो दैट बिकॉज रिएक्शन होती है वहाँ पे, सो दैट्स राइट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। Okay, so first of all, say hi to Teddy. My Teddy is saying hi to all. Okay, jokes apart. Example. These are some other example where you can see the displacement reaction has occurring. So zinc plus copper sulfate gives zinc sulfate plus copper. यहाँ पे zinc ने displace कर लिया copper को, and here lead plus copper chloride gives lead chloride plus copper. मतलब कि यहाँ पे lead ने displace कर लिया copper को. Now lead and zinc. What do I mean by this? Lead and zinc are displaces copper. Here also, here are two examples. So what I'm trying to say कि lead and zinc displaces copper from its solution. So zinc and lead are more reactive than copper. So आपको इसे याद कैसे रखना है? बस कुछ नहीं करना, इस पिक्चर को दिस पिक्चर फॉर 2 to 3 सेकेंड, lead zinc, इसलिए ना मैंने उसको ऐसे मतलब पावरफुल बनाने के लिए ऐसे शेप भी ऐसा कुछ यूज़ हुआ है, मतलब कि स्पार्कलिंग टाइप की, दैट आई एम वेरी पावरफुल, लेड एंड जिंक आर वेरी पावरफुल देन कॉपर, सो जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर। मूविंग ऑन। ओके, आया हेरा फेरी वाला गेम। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्टिविटी 1.10। मैं थकने वाली हूँ आज एक्टिविटी बोल के। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हियर two elements changes their respective position and exchanges their position. How? Take a beaker. This activity says कि एक बीकर लो, उसमें बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन डालो एंड सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन को ऐड किया, दोनों को ऐड करके थोड़ी देर रख दो। मतलब कि क्या होता है दोनों थोड़ी देर के बाद, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? दे हैव आस्क्ड। So you will observe white color precipitate, that is white color precipitate of barium sulfate in a test tube. The insoluble substance form is known as precipitate. क्यों? क्योंकि ये insoluble है, पानी से रिएक्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ नीचे सेटल डाउन, इट विल सेटल डाउन इन द टेस्ट ट्यूब, मतलब कि एकदम नीचे होगा, सेटल डाउन इन द टेस्ट ट्यूब, पानी से रिएक्ट नहीं करेगा, दिस विल बी insoluble substance form is called precipitate. So this reaction is also called as precipitization reaction. So double displacement and precipitate reaction का example same हो सकता है, this you need to note it down also. Now coming to the reaction, sodium sulfate plus beryllium chloride gives beryllium sulfate plus sodium chloride. So here the precipitate form is because of the beryllium sulfate. लेकिन रिएक्शन में हुआ क्या देखते हैं। सोडियम सल्फेट था, उसने सोडियम सल्फेट के साथ सोडियम था, आफ्टर रिएक्शन सल्फेट के साथ बेरिलियम हो गया, एंड हियर ऑल्सो क्लोराइड के साथ पहले बेरिलियम था एंड आफ्टर रिएक्शन क्लोराइड के साथ सोडियम हो गया। सो इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन देर इज एक्सचेंज ऑफ आयन्स, मतलब कि एलिमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस नहीं करते, आयन का रोल होता है। मेन पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर दैट the insoluble substance formed because of the beryllium sulfate BaSO4, that is it. Now what causes this, मतलब कि ये होता क्या है? See here also Teddy comes. Hi Teddy. Okay, so मतलब कि होता क्या है? So I told you, मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आयंस का कुछ रोल होता है. So the white precipitate of BaSO4 is formed by the reaction of sulfate SO4 2- and berylate Ba2+, and such reactions there is exchange of ion. यहाँ पे exchange of ions हुआ है, मतलब कि कोई मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव ऐसा कोई रोल नहीं है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन्स एक्सचेंज हो गए हैं एक दूसरे के साथ. सो बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट. मतलब एग्जांपल AgNO3 प्लस NaCl. नाउ Ag इज विथ NO3 बट आफ्टर रिएक्शन Ag इज विथ Cl. सो हियर द एक्सचेंज ऑफ आयन्स अकर एंड योर reaction also occurs like this way. So that is the whole point कि exchange of ions takes place in double displacement reaction, and in only displacement reaction more reactive element displaces the less reactive element. That's the whole point. Moving on to the next one. Activity 1.11. यहाँ पे ना एक कॉपर पाउडर, चाइना डिश में कॉपर पाउडर लिया, उसको हीट किया,
तो आफ्टर सम टाइम क्या ऑब्जर्व हुआ वो हमें देखना है. सो द सर्फेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड. जो कॉपर का जो पाउडर का जो सरफेस था उसे कोट, इट विल आफ्टर सम टाइम इट विल बी कोटेड विथ कॉपर ब्लैक कॉपर ऑक्साइड. सो हियर इट इंडिकेट्स कि कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक होता है. तो दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म. क्यों? क्योंकि कॉपर के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई एंड देन इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड. सो कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर. दिस इज ओके, दिस इज द थिंग कि कॉपर था, कॉपर पाउडर था, उसको हीट किया तो से दिस इज़ द ब्लैक कलर फॉर्म. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मुझसे जितना हो सकता है मैंने उतनी इमेजेस ऐड की है so that it is very easy for you to remember things. Moving on, after that copper oxide is you got the copper oxide. So that after copper oxide is treated with hydrogen gas and then heated, so it will give you copper plus water. So copper oxide black color which turns to brown color when it reacted with hydrogen. So here it is showing that black color turning to brown after heating. मतलब कि पहले कॉपर पाउडर था, उसको हीट किया तो पहले ब्लैक कलर बना क्योंकि CuO बना, मतलब कि कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हुआ. एंड देन कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो फिर से कॉपर प्लस H2O बनेगा, तो उसका कलर ब्लैक से ब्राउन हो जाएगा. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. Okay, so this is something interesting. Substance plus oxygen is equal to oxidize. अगर कोई substance उसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो वो ऑक्सीडाइज होता है. इट्स वेरी सिंपल. ऑक्सीडाइज मतलब कि ऑक्सीजन ऐड हुआ. Substance plus oxygen equals to oxidize and substance minus oxygen equals to reduce. Or we can say, this is very important, or we can also say that substance plus hydrogen will give you is equal to reduce. अगर एक सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है देन इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड. substance is losing an oxygen then it will be reduced, or if a substance is getting hydrogen then also it will be called as a reduced substance. So this is very important. I have made this so cute. Please remember like this only कि substance if you add substance plus oxygen then it will be oxidized, and substance minus oxygen equals to reduce, or this you need to learn or remember the substance plus hydrogen is also termed as reduce. Now if both these reactions occurs together, मतलब कि एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और एक सब्सटेंस रिड्यूस भी हो रहा है, तो क्या करेंगे? So in other words, one reactant gets oxidized while the other gets reduced during a reaction. Such reactions are called oxidation reduction reactions or redox reaction. In equations का हमने एक स्पेशल नाम दे दिया, that is redox reactions. Now how we will check if a reaction is redox reaction or not? Just see the equation. Okay, now Fe2O3, here oxygen is present. After the product, here only Fe is there. There is no oxygen. मतलब कि हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए. So substance minus oxygen that is reduced. मतलब कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है सब्सटेंस का, मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो substance minus oxygen that is the reduce. So here it is undergoing reduction, and here CO मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड, after reaction in product we are getting carbon dioxide. That is we are getting one more oxygen in the product side. So what does it mean? Substance plus oxygen, we are getting one more oxygen extra. So this is undergoing oxidation process. So this by combining this all oxygen plus reduction, it is called as redox reaction. Okay, now moving on to the next one. ओके मैंने कहा ऑक्सीडेशन, सब्सटेंस प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस माइनस ऑक्सीजन इक्वल्स टू रिड्यूस. अगर ऑक्सीडेशन लेकिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे या कुछ भी हो तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं. सो इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होती है उसके इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हैं. तो फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट इज कोरोजन. व्हेन अ मेटल इज अटैक्टेड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एयर एक्सेट्रा, एसिड्स, मॉइस्चर, एयर के साथ भी रिएक्ट करे तो भी हो सकता है एक्सेट्रा. इट इज सेड टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन. नाउ कोई भी मेटल है उससे हमने मॉइस्चर, मतलब कि इफ़ इट रिएक्ट्स विथ वाटर और एसिड, द प्रोसेस ऑफ कोरोजन स्टार्ट, मतलब कि कोरोजन उसकी डैमेजिंग स्टार्ट होने लगती है बिकॉज ऑफ द रिएक्टिंग विथ एसिड्स एंड मॉइस्चर एंड ऑल दैट. सो हाउ, मतलब ऐसा ना अगर ऐसा करके मैंने छोड़ दिया तो आप लोग ना मैक्सिमम 4 to 5 डेज आप लोग याद रखोगे कि हाँ कोरोजन का मतलब ये होता है. व्हाट अबाउट दिस? Now what about this? This is silver, this is metal first.
after corroding it looks like this. So this is the transformation. So this is what do I mean by corrosion. So this is the picture, that's it, this is corrosion. So you just need to remember this picture कि पहले metals जो होते हैं वो चमकते चमकते ऐसे मस्त ऐसे sparkling होते हैं, लेकिन after reacting with moisture, acids और etc. it looks like this, that is the corrosion takes place. And here also the rusting of iron takes place. See here also the rust formation has taken place because of the reactions, oxidation reactions. So pictures are also very important. So just okay, now no we are having more ओके. सो एग्जाम्पल्स, मतलब कि कोरोजन के एग्जाम्पल्स क्या क्या है. सो एग्जाम्पल्स में क्या करेंगे कि सिल्वर, ब्लैक कॉन सिल्वर, मतलब कि सिल्वर जो है वो थोड़े दिनों के बाद ब्लैक होने लगता है. क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन होता है, सो इट टर्न्स टू ब्लैक. एंड नाउ कॉपर ऑल्सो, दे आर ऑल्सो ब्लू इन कलर, बट आफ्टर ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड आर टेकिंग प्लेस, सो इट टर्न्स टू ब्लू इन कलर. नाउ व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ दिस कोरोजन. सो डैमेज टू कार बॉडीज़, मतलब कि कार बॉडीज़ को भी डैमेज करता है, क्योंकि उसमें भी थोड़े मेटल्स या फिर थोड़े वो आते हैं. देन ब्रिजेस को भी हार्मफुल करता है. देन आयरन रेलिंग्स को भी रस्टिंग करता है, शिप्स को भी रस्टिंग करता है, क्योंकि एज यू ऑल नो कि इन सारी चीज़ों में आयरन का यूज़ होता है. तो एवरी ईयर वी आर वेस्टिंग सो मच मनी टू रिपेयर दिस टाइप ऑफ आयरन, कि रस्टिंग को हटाना है और आयरन को मतलब कि रिप्लेस करना है. तो इसमें ना लॉट्स ऑफ मनी हमारे कंट्री की वेस्ट हो रही है. ओके, दैट इज़ डैमेज टू कार बॉडीज, दैट इज़ ब्रिजेस, दैट इज़ शिप एंड दैट इज़ आयरन रेलिंग. सो जस्ट रिमेंबर दिस स्लाइड, योर कोरोजन इज़ डन. यस, योर कोरोजन टॉपिक इज़ डन. ना इसमें ना एक टेक्स्ट बुक में ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर आपको इसको प्रिवेंट करना है ना, तो थोड़ी सी मेथड आती है, दैट इज़ सम एक्स्ट्रा, कि पेंटिंग करवा लो या फिर ऐसे कुछ मेटल से कोटिंग करवा लो कि जो इस मेटल आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव हो, ताकि वो उससे रिएक्ट करके फिर मेटल मतलब आयरन तक पहुँचे ही ना, वो एलिमेंट उसके साथ ही रिएक्ट हो. लेकिन यहाँ वन ऑफ द मोस्ट यूज़फुल कि वो पेंटिंग वाला जो टेक्निक है वो ये बहुत यूज़ होता है, कि दैट्स वाई आवर कार्स आर ऑल्सो पेंटेड विथ नाइस कलर्स एंड ऑल दैट. नाउ मूविंग ऑन टू द next topic, that is rancidity. Now what do you mean by rancidity? Rancidity is change in smell and taste of food due to oxidation of fats and oil present in them. यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन का ही रोल. चेंज इन स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड, मतलब कि अगर आपने फूड थोड़े दिनों तक ऐसे ही रखा तो उसमें ना आपने देखा होगा कि स्मेल एंड टेस्ट थोड़ा सा अजीब सा टेस्ट एंड थोड़ी सी अजीब सी स्मेल आने लगती है. क्यों? क्योंकि दिस इज़ बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल. जो उसमें फैट्स प्रेजेंट थे, जिसमें ऑयल प्रेजेंट थी, वो एयर के साथ रिएक्ट करेंगी. देन ऑक्सीडेशन, व्हाट डू मीन बाय ऑक्सीडेशन? सब्सटेंस प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू ऑक्सीडाइज. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. तो जो खाना था वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडेज, उसमें जो फैट्स एंड ऑयल्स थे वो सारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो गए. टू प्रिवेंट दिस ऑल, ऑक्सीडेंट्स आर एडेड. मतलब नाउ कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स और कीपिंग द फूड इन अवर रेफ्रिजरेटर्स, मतलब वो तो हम लोग करते ही है रोज़. कीपिंग नाउ आप लोग जो बहुत आपकी जो फेवरेट चीज़ें हैं ना वो आने वाली है. सो दिस इज द चिप्स यू ईट, दैट इज़ ऑल्सो द पैकेट, द चिप्स यू गॉट इन द पैकेट, दैट इज़ ऑल्सो फिल्ड विथ नाइट्रोजन गैस. मतलब कि उसमें नाइट्रोजन गैस होती है, उसमें ऑक्सीजन गैस नहीं होती. क्यों? आप जो चिप्स जो खाते हो वो भी नाइट्रोजन गैस वाली खाते हो. डू यू अंडरस्टैंड? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. ओके, योर चैप्टर इज़ ओवर नाउ एंड योर मोटिवेशनल डोज इज़ रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड. सो ना ये कुछ ऐसी बातें हैं कि जब आपको ऐसा लगे कि नहीं बहुत हो गया, नाउ आई डोंट वांट टू स्टडी, व्हेन यू फील लाइक क्विटिंग द थिंग्स, थिंक कि आपने स्टार्ट क्यों किया था. मतलब कि आपने स्टार्ट क्यों किया था, वाई यू स्टार्टेड दिस थिंग, कि मुझे ये करना है. आपकी लाइफ में भी ना कभी भी कोई भी चीज़ स्टार्ट करो तो उसमें अपना 100% दो. या तो फिर आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें अपना 100% दे दो, या तो फिर स्टार्ट ही मत करो. इफ़ यू आर स्टार्टिंग देन गिव इट जस्ट अ बूस्ट, मतलब कि जस्ट 100%, गिव इट अ शॉट, मतलब कि 100% उसमें दे ही दो. दैन ओनली यू विल बी गेटिंग योर बेस्ट रिजल्ट एज पॉसिबल. जो यू फील लाइक डीमोटिवेटेड एंड वन, जस्ट थिंक अबाउट द पोजिशन यू विल गेट. कि अगर आपने ऐसा सोचा है कि मुझे 99% चाहिए, 98% चाहिए, सो उस चीज़ों के ना बारे में सोचना स्टार्ट कर दो कि अगर मेरे 99% आ गए तो मैं क्या करूँगा. अगर मेरे 98% आ गए तो मैं आई विल बी डूइंग दिस एंड ऑल विल बी सेइंग हाय दिस इज़ माय फ्रेंड. सो
दिस ऑल थिंग, मतलब स्टार्ट थिंकिंग इन अ गुड वे कि अगर वो चीज़ हो जाएगी तो मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब वो चीज़ अचीव हो गई मुझसे कि मैंने वो चीज़ अचीव कर ली, दैन वॉट आई विल बी सेइंग और वॉट आई विल बी डूइंग एट दैट टाइम. सो दिस विल मेक you feel very happy and energetic from inside. So whenever you are feeling demotivated, just try do this and keep your vibe so strong कि कोई भी आपकी जो नेगेटिव चीज़ है that does not affect your studies, इतना पॉजिटिव रहो कि नहीं करना है तो करना है, मतलब देयर इज़ नो सच थिंग दैट विल रिप्लेस योर वाई, मतलब कि इतना स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए कि नहीं मुझे करना है, क्यों करना है, एंड दैट ऑल. कीप टू दी होमवर्क. So yes, you have to please answer this question. Is this a redox reaction? First of all, CuO plus H2 gives Cu plus H2O. Is this a redox reaction? If yes, then you need to answer this कि which element is getting oxidized and which is getting reduced, मतलब कि इसमें से कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसमें से कौन रिड्यूस हो रहा है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑल्सो दिस सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट इज द कलर ऑफ CuO. आई स्वेयर अगर आपने ये लेक्चर इतनी अच्छी तरह से देखा होगा ना तो आपको सारे आंसर्स ऐसे ही मिल जाएंगे, मतलब कि मैंने ये भी बताया कि CuO का कलर क्या होता है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्लीज़ राइट योर आंसर्स इन माई कमेंट सेक्शन बिलो. ऑल्सो do follow my Instagram handle, that is bio #diaries2401. यहाँ पे ना मैं थोड़े अपडेट्स देती हूँ एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अगर फॉलो करें तो बहुत सारी न्यू चीज़ें, थोड़े ऑफ मोटिवेशन एंड लिटिल बिट ऑफ ट्रिक्स एंड टिप्स मैं पोस्ट करूँगी. सो प्लीज़ डू फॉलो माई इंस्टा. So yeah, that's it. I hope you like my lecture and next we will be starting with biology chapter number 1, क्योंकि हम लोग ना ऐसे करेंगे एक chemistry का chapter. Now I will be doing your biology chapter number 1 and then comes physics chapter number 1. After this I will be starting life processes, that is the biology chapter number 1. Okay, so let's meet in my next video. Till then, bye and take care all of you.